السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو ڈاکٹر نوید. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شہد کریم ایڈوکیٹ کے ساتھ، جو کہ عزیز الدین اینڈ شہد لا ایسوسی ایٹ کے ہیں، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے پوچھتے ہیں کراچی کے امن کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پہ بہت سے بزنس مینوں کا خیال ہے کہ رینجر کو یہاں پہ رہنا چاہیے. بلکہ جتنے بھی بزنس مینوں کو انٹرویو کیا انہوں نے کہا ہے کہ رینجر کو یہاں پہ رہنا چاہیے. کچھ سیاستدان جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ رینجر یہاں سے چلی جائے. اس لیے اگر رینجر یہاں سے چلی جاتی ہے تو کراچی کا امن کیسے رہے گا؟ سب سے پہلے یہ کویسچن. دوسرا، اس وقت مسلمانوں کا جو حال ہوا ہے خاص طور پہ فلسطین میں، اسرائیل میں، مقبوضہ کشمیر میں دیکھ لیں آپ، برما کے مسلمانوں کے، شام کے مسلمانوں کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، کچھ ان کی خدمت خلق کے حوالے سے. آپ بات دیکھ رہے ہوں گے کتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں راشن لینے کے لیے. یہ ہمارے رمضان میں خاص طور پہ، خصوصی طور پہ یہ راشن ڈیوائڈ کرتے ہیں غریب لوگوں کے لیے، اور یہ ان کا بہت بڑا اقدام ہے. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شہد کریم ایڈوکیٹ کے ساتھ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. سر. سب سے پہلے تو ہم کراچی کی امن کی بات کریں گے. اگر امن ہے تو سب کچھ چلے گا، اگر امن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کراچی میں چلے گا. ساری کی ساری معاشیت ہماری تباہ ہو گئی اسی دہشت گردی کے معاملے میں. اب کراچی کو جیسے پیچھے 20-25 سال 30 سال چلے جائے روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، اب یہاں پہ وہ والی حالت نہیں ہے، وہ روشنیاں نہیں ہیں. اس کو دوبارہ لانے کے لیے حکومت سندھ، حکومت پاکستان، ہماری پاک فوج، ہماری رینجر، اس میں کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ ناسور، یہ ساری چیزیں ہمارے ملک سے، ہمارے سندھ سے، ہمارے پورے پاکستان سے یہ چلی جائیں؟ یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا. اگر ہم اپنے دور پہ جاتے تو ہم رات کو 3 بجے چلے جاتے تھے پٹیل پاڑا کیفے پیالہ چائے پینے. آج سے جب تک رینجرز نہیں آیا تھا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہمارے گیٹ پہ تالا لگ جاتا تھا 7:30-8 بجے تاکہ بچے باہر نہ نکلیں. الحمدللہ رینجرز ہے، آرمی کا سپورٹ ہے، امن کمیٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ تو میں کہتا ہوں رینجرز کو تو یونانیمسلی ان کو انکنڈیشنل یہاں رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ ان کا ایکسٹینشن ہونا چاہیے، ان کو یہاں رہنا چاہیے اور رہ کے وہ جو کر رہے ہیں کام بالکل کرنا چاہیے، تاکہ کم سے کم میرے بچے اس وقت رات کو 12 بجے نکلتے ہیں اور میں آرام سے لیٹا ہوتا ہوں. اتنا مجھے سکون ہے کہ انشاءاللہ تعالی راستے میں کوئی ڈکیتی نہیں ہوگی. دیکھیں چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی اسٹریٹ کرائم چلتے رہتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں. کوئی میجر ایشو نہیں ہے، کوئی کڈنیپنگ نہیں ہے، کوئی رنسم نہیں ہے، کوئی ہائی جیکنگ نہیں ہے، کوئی گاڑی چھیننا نہیں ہے. یہ سب چیزیں اگر نہیں ہیں تو پیرنٹس کے لیے تو اس سے اچھی چیز ہو ہی نہیں سکتی. کچھ جو ممالک ہیں، غیر ممالک ہیں ہمارے، دیکھیں اب سبیکہ شیخ والا اتنا بڑا معاملہ ہوا امریکہ میں، کوئی کسی ملک نے کوئی اتنا ایشو نہیں اٹھایا. اگر یہی معاملہ پاکستان میں ہو جاتا تو پتہ نہیں کیا شور مچ جاتا ادر کنٹریوں میں. یہ اسی وجہ سے پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دیا گیا ہے. لیکن باقی ممالک میں ہو رہے ہیں، سب دہشت گردی ہو رہی ہے. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پہ نہیں ہو رہی، لیکن وہ اس کا کوئی نام بھی نہیں لیتا. وجہ یہ ہے کہ اب میں کیا بولوں، ہم ایک میچورڈ آدمی ہیں، سیزنڈ آدمی ہیں. ہمارے جب گورنمنٹ لیول میں لوگ بیگنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب دوسرے کے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو پھر ڈیمانڈ کریں گے نا. وہ ایز پر ریکوائرمنٹ اپنی چیزیں ان کو جو کرنا ہے وہ کریں گے. وہ کہیں گے جی آپ ایسا ملک چلائیں، آپ پیٹرول کی قیمت یہ کر دیں، آپ کھانے پینے کی چیز ایسا کر دیں. پانی کا مسئلہ دیکھیں آپ، انڈیا سے اتنے عرصے سے ڈیم نہیں بن سکتا ہمارے یہاں. کیوں نہیں بن سکتا؟ پچھلے کئی سالوں سے کالا باغ ڈیم کا مسئلہ جو ہے وہ ویسے کہ ویسے سٹل کھڑا ہے وہیں پہ. چلو اس کو چھوڑیں، باقی چھوٹے ڈیم کے ذریعے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. پانی ہمارا ضائع ہو رہا ہے، سارے پانی ضائع ہو جی. اگر وہی ڈیموں میں محفوظ کر کے وہاں سے بجلی پیدا کی جائے، اور یہ جو آج ہم لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگت رہے ہیں تو اس پہ تو نکلا جا سکتا ہے نا اس عذاب سے. تو بالکل. میں نیشنل جیوگرافک دیکھ رہا تھا ابھی کچھ دن پہلے رات کو. وہاں چائنا کا ایک سٹی دکھا رہے تھے، انڈسٹریلسٹ سٹی، جہاں سارے انڈسٹریز ہیں. 300 ڈیم ہیں، 300 ڈیمز صرف اسی انڈسٹری کو چلانے کے لیے، صرف چلانے کے لیے بجلی اور وہ سب دکھایا میں تو نے. وہاں تو بجلی جاتی نہیں، نام و نشان ہی نہیں ہے بجلی کا. پانی کا بھی کوئی آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جاپان میں کچھ سیکنڈ کے لیے بجلی چلی گئی تھی اور ان کا جو وزیر تھا وہ ایسے گھٹنوں کے بل اس کو سزا دی گئی تھی. شاید آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ. سوری کیا تھا اس نے، جی. اپالوجی کیا تھا اس نے، میں دیکھا. لیکن پاکستان میں اس چیز کا کوئی نام ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ
क्या आपसे क्या बोलूं, आपके सामने सारी चीज़ें। आज सुबह की एक बात बताओ, मैं टैंकर वाला आया पानी लेने, बहुत पुराना है हमारा, 2 दिन के बाद मीठा पानी लेकर आया। उससे मैंने पूछा कि भाई ये 2 दिन लग गए, इस बार बड़ा प्रॉब्लम हुआ मुझे। तो कहने लगा वकील साहब मैं आपको क्या पूछूँ, 150 टैंकर खड़े थे और वो आप समझ सकते हैं किसके खड़े थे। तो ये तो हमारा हाल है कि अगर पॉलिटिशियंस और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके अगर टैंकर चल रहे हो तो हमें कहाँ से पानी मिलेगा, आप मुझे बताएं। ये तो होना नहीं चाहिए। KWSB इज सेलिंग वाटर लाइक एनी, वो पानी बेचता है 10-12 हज़ार रुपये। ये कोई तरीका आपको लगता है? टेलीविज़न में इतने सारे एंकर आते हैं, इतने सारे गेस्ट आते हैं, कितनी बातें होती है करप्शन की इसकी, आपने आज तक सुना कि कोई पकड़ा गया, कुछ हुआ? सर मीडिया का काम है हाईलाइट करना। मीडिया तो एक्सीलेंट वर्क, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। मैं काफ़ी अरसे से हमने अवाम को भी दिखाना होता है और हुकूमत को भी दिखाना होता है, हम वो लोग दिखा रहे होते हैं। बिल्कुल। आगे हमारा काम तो नहीं उस पर अमल दरामद करवाना। आपका काम जो है ना इस वक्त बहुत सॉलिड चल रहा है, और माशाल्लाह अब जो मीडिया है ना, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आ गए, नोहा हो गए, उनको पता है कि हमारी कंट्री है क्या, सीजन लोग हैं। अब कोई ये नहीं कहेंगे कि कोई 22 साल वाला जर्नलिस्ट है, कोई 24 साल वाला जर्नलिस्ट है, इधर सारे सीजन है। मैं आपको तकरीबन 95 से जानता हूँ, तो अब 95 से ये 2018 है, तो यार आपको कितना रिच एक्सपीरियंस है। वैसे ही आपके जितने भाई बैठे हुए सारे रिच एक्सपीरियंस लोग हैं, आपको तो पूरा इस शहर का पता है। आप भी निकलते होंगे रात को बाहर अपने ज़माने में, अब तो अब 10 दफ़ा सोचते होंगे कि यार सर मुझे ये आप निकलना चाहिए, इतनी बड़ी नहीं चाहिए। खिदमत खलक कर रहे हैं, ये आपको कैसे जज्बा पैदा हुआ मारमसान में? ये राशन डिवाइड आप कर रहे हैं, लोगों की बाहर लाइनें लगी हुई हैं, आपने टोकन्स डिवाइड किए, ये सब आपको कैसे जहन में आया और ये कब से आप ये कर रहे हैं? दिस आई एम डूइंग इट फॉर द लास्ट 15 years, और इसमें मेरा मेजर जो हैंड है ना वो मेरी मिसेज है। शी इज़ एन एक्सीलेंट पर्सन। आई मीन ऐसे औरत दुनिया में बहुत कम होते हैं, मोस्ट हार्ड वर्किंग। मैंने इतना डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, अच्छा वो हमें कहती हैं आप ये करें, आप ये करें, बैक में वो पूरा होती हैं क्योंकि वो लॉयर है, हाई कोर्ट, टाइम नहीं है वो उनके पास, लेकिन पूरा टाइम देती हैं। और मुझे 200% सपोर्ट मेरी मिसेस का है, मेरे बच्चों का है, और ये जो मेरे वर्कर्स हैं, यकीन कीजिए आप, ये देखिएगा बेलॉस खिदमत है। यार शाम को ये जाते हैं, क्या करते हैं, मैं 1200 राशन वो इफ्तार बनाता हूँ, इनको एक पैकेट देता हूँ, 3 रोटी और 1 सालन, ये जो यहाँ होता है खाते हैं, इसमें ये खुश हैं। एक राशन मिलता है इनको, कपड़े मिल जाते हैं, और 15 दिन का मैं करता हूँ ये पूरा 15 डेज़ का 1200 लोगों का इफ्तार। अच्छा, यानी कि पूरे रमजान से 15 दिन आप 15 दिन करते हैं, 15 दिन पूरा ठीक। 1200 लोगों का होता है। आपको मैंने दिखा दिया पीछे बनता क्या है, सारे सही। घर वाले ये लोग बनाएंगे, सही। ये पैकिंग करेंगे, ये भागेंगे, ये शरबत पिलाएंगे लोगों को, सही, आप घर के बाहर ही करते हैं? सब बाहर। सही। तो तो कितने के लोग आ जाते हैं वहाँ पे? वो बहुत लोगों से 1200 का ज़्यादा तो आपके जहन में है ना, हाँ, ठीक है ना, कि आप 1200 का अरेंज कर रहे हैं, लेकिन बाहर तो कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा हो जाती है। वजह ये है कि देखिए ना, अब यहाँ मेरा मेन रोड है, अब यहाँ से वैन गुजर रही है, 25 का पैकेट लिया, उनको दे दिया, अब 25 लोग हैं, 20 लोग हैं, 32 लोग हैं, ऐसे हो जाता है। हमारे यहाँ घर के अंदर तकरीबन 600-700 लोग होते हैं, सही। जिनको मैं राशन घर के अंदर वो इफ्तार घर के अंदर बुला के देता हूँ। बाहर तो ग्राउंड में आप जी मैंने सबको लेडीज़ को माहौल में पहले बुला लेता हूँ, दरवाज़ा सही। खोल देता हूँ, लाइन लगवा के ये सारे लड़के फिर हो जाते हैं। ये कितने बजे स्टार्ट करते हैं आप ये इफ्तारी वाला? ऑलमोस्ट तकरीबन 6:15 6:30। हाँ, क्योंकि आधा घंटा बीच में सिर्फ 7 2 पे 7 1 जी। पे आजकल इफ्तारी चल रही है। फिर ये होता है कि ये सब वेट करते हैं, सही। क्योंकि मैं शरबत बनाता हूँ। शरबत अल्लाह का शुक्र है मैं शुरू से, टैंकर वाले जितने गुजरते हैं तब तो नहीं गुजरते। टैंकर वाले अभी 1 महीना पहले मुझसे कह कर जा रहे थे, सर शरबत मिलेगी, मैंने कहा बिल्कुल मिलेगी। यानी कि आप खुद बनाते हैं और बड़ा अच्छा बनाते Yes, हैं। मैं खुद बनाता अच्छा, लास्ट पे सवाल तो बहुत सारे हैं जो कर, लेकिन है कि इतना टाइम नहीं होता। हुकूमत जाने वाली है, निगरान वजीर आज़म वजीर आला आने वाले हैं, आप नेक्स्ट हुकूमत को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? बिल्कुल। और ख़ास तौर पे आप नेक्स्ट हुकूमत आने वाली जो है उस पर आप क्या इन्हिसार करेंगे? देखिए मैं तो अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगा उस तक की बात करूँगा। मैं सिर्फ उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट की है कि रेंजर्स जैसे चल रहे हैं चलने दें, ठीक। आर्मी का अपना रोल फैंटास्टिक है, जिसके जो इदारे ISI है, IS है, M5 है, M6 है, लेट देम वर्क एज दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग इट फाइन जॉब। जो नया गवर्नमेंट है दे शुड ओनली कॉन्सेंट्रेट
कि आम पब्लिक को फैसिलिटेट कैसे किया जाए। सहूलियात प्रोवाइड करें। खाना, उसके बाद बिजली, इसके बाद पानी। पानी इज़ मोस्ट इसेंशियल। पानी का ये मसला हल कर दें, मैं समझता हूँ कराची का आधा मसला हल हो फर्स्ट प्रायोरिटी पे पानी। फर्स्ट और- प्रायोरिटी पानी, इलेक्ट्रिसिटी। और ख़ास तौर पे कचरा। कचरा तो सर मैं कह नहीं सकता उसके बारे में, वो एक ऐसा इदारा है जो हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। KMC नहीं, वो तो इज़ अ ठीक वेरी है। बिग थिंग। तो कचरा से तो बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी, ये भी तो देखें ना। अगर इस तरफ आप साफ पानी मुहैया कर रहे हैं लोगों को, चलो एक सपोज करें साफ पानी मुहैया हो जाता है, दूसरी तरफ कचरा नहीं उठाते तो उससे भी तो डिजीजेस फैल रही है ना। देखिए मेरे दोनों साइडों पे आप कंपेयर करें तो। मैं 60 ईयर्स का हूँ, जी मैंने हर एक दौर देखा है। मेरे पास सिर्फ MQM के लिए एक मैसेज है, सही हम सब उर्दू स्पीकर हैं, सही। उनको रिगार्ड और रिस्पेक्ट करना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं उनको कुछ उर्दू कह नहीं स्पीकिंग का सकता। बिल्कुल करना चाहिए कि सबका। देखिए सब ऑटोमेटिकली जब वो हमारे लिए करेंगे ना, अब आप देखिए लालू खेत सही करेंगे, आप लियारी सही करेंगे, आप मकसद जो उर्दू स्पीकिंग का एरिया है 90 सही करेंगे, आप देखिए जाके कचरा सबसे ज़्यादा वहाँ है। जी, डिफेंस में आपको कहाँ कचरा मिलेगा, बिल्कुल, क्लिफ्टन में कहाँ मिलेगा आपको, या आपके ये मोहम्मद अली सोसाइटी में आपको कोई कचरा नहीं नहीं। मिलेगा, शहीद मिल्लत में आपको कोई कचरा नहीं मिलेगा। तो हम जो बात सर कर जो रहे हैं लोग वो अमीर हैं गलत उनके है। पास कचरा कहाँ होता है ये बताएं सर, मुझे। अमीर- गरीब आबादी में ही कचरे होते हैं, वहीं फेंके जाते हैं, वहीं सारा कुछ होता है। सर अमीर तो हम भी हैं, बहुत अमीरों से मिलता हूँ, मेरा काम ही यही है, मैं अरबपति लोगों से मिलता हूँ। बट सर वो तो आपको प्रोफेशनल है ना, तो वो तो आपको मिलना पड़ता है ना। विद ड्यू रिस्पेक्ट दे शुड प्ले देयर रोल, दे आर नॉट प्लेइंग। रमज़ान में किसी को 20 लाख रुपए दे देना खाने के लिए, किसी को कुछ कर देना, मैं समझता हूँ बिल्कुल फ्रूटलेस। आप सेल्फ सर्विस करें, आप रोड सही करें, आप अपने इलाका सही कर दें, आप मस्जिद बना दें, आप पानी का कोई बंदोबस्त कर दें यार, आप कुछ ऐसा करें जो आप कर सकते हैं। आई मीन यू कैन डू इट। करोड़ों में इनका ज़कात निकल। आगे भट्टी साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि अगर एक साल कुर्बानी रोक दी जाए, तो बकरा ईद की बात कर रहे थे, कुर्बानी रोक दी जाए यानी कि जितने भी मुसलमान हैं जो कुर्बानी करते हैं रोक दी जाए, तो इससे बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा और हमारी जो हम लोग जो कर्जे पे चल रहे हैं वो हमारा कर्जा जो है उतर जाएगा और हमारे खजाने जो हैं वो भर जाएंगे। सर आपको भी पता है हमारे मुल्क में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। आप वेजिटेबल्स ले लें, आप फर्टिलाइज़र ले लें, आप हमारी काश्तकारी ले लें, यही अगर आप एक्सपोर्ट करें चीज़ों को, आप सोचिए ज़रा आपके पास कितने पैसे आएंगे। आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे। किसी ज़माने में किसी ने कहा था कोट नहीं करूँगा, उन्होंने कहा आप मुझे 6 महीने के लिए दे दीजिए, आपको याद होगा। उन्होंने कहा आप दे दीजिए, मैं हेलीकॉप्टर चलाऊँ या मैं पूरा फील्ड बेच दूँ, समझ गए आप। उन्होंने कहा 6 महीने में पूरा कर्ज उतर जाएगा। तो सर ऐसे लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को करना चाहिए ना कि भाई ठीक है हम तुमको सपोर्ट नहीं कर रहे लेकिन तुम करो, हम तुम्हें दबाएंगे ज़रूर लेकिन तुम अपना काम करो। अवाम तो पिछले दिनों भी पैसे दिए हैं उन्होंने, जो वो तहरीक शुरू हुई थी कर्ज उतारो वाली, हाँ। लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि वो पैसे गए कहाँ पे। तो फिर इसलिए तो अवाम नहीं दे सकती ना पैसे कि अगला बंदा ही खा जाए। मतलब मैं आज सपोज करें आपको देता हूँ, उसका पता ही नहीं है मुझे कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसमें आवाम तो कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती देखिए ना। अगर आवाम का पैसा आप लगाएंगे, ये ले जी उतर गया है, मतलब 100 रुपये हमारे मुल्क के ऊपर कर्जा है, तो आवाम देती है जी ये 99 रुपीज़ जो है उतर गया, 1 रुपया रह गया, बाकी 1 रुपया दे जी उतर जाएगा मुल्क का कर्जा, उसके बाद खजाने भरने शुरू हो जाएंगे। मैं सिर्फ एक सवाल करूँगा मुराद अली शाह साहब से, इज़ अ वेरी थॉर जेंटलमैन, पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे आदमी का तरीका डिफरेंट है। आई रिमेंबर जब ये ब्रिज बनने जा रहा था हमारे घर के सामने, मेरे घर का क्या हाल था उसको आप छोड़ दीजिए। ईद से पहले 10 दिन पहले 20 अरब रुपए इमीडिएटली इम्बर्स किया गया। 10 अरब रुपए इसके लिए किया गया, 34,000 कैमरास लगने थे रोड्स पे। यस सर, आप खुद पढ़े लिखे आदमी, आप पूरे कराची घूमते हैं, मुझे बता दीजिए कितना कैमरा लगा हुआ है। 10 अरब रुपए, 10 अरब रुपए, 34,000 बढ़िया कैमरास। उस दिन मैं क्योंकि फॉलो करता हूँ न्यूज़ चैनल वगैरह, तो वो 34,000 में से उसका दोबारा मैंने और जिक्र नहीं सुना, ना मैंने पेपर में कहीं देखा कि जी 4,000 लग गया, 5,000 लग गया, 8,000 लग गया या 10,000 लग गया।
मुझे आज तक नहीं पता लगा भी या नहीं लगा। 10 अरब रुपए रिलीज इमीडिएटली, ये दोनों ब्रिज बनने के लिए 10 अरब। सर आपको मैं क्या बताऊं, 5 तारीख को इनका ख़त्म हो रहा था ना, 5 तारीख को 24 आवर्स काम हुए थे। 24 आवर्स ऐसा काम हुआ कि मैंने ऐसे ऐसे मशीन ज़िंदगी में नहीं देखी जो यहाँ थी। 5 तारीख के बाद अभी आप निकलिएगा ना बाहर, तो आप देख लीजिए कितने लोग काम कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। ओनली टू रीइंबर्स द मनी। इट इज़ सर, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा तरीका डिफरेंट होता है बात करने का, लेकिन हम गलत बात नहीं कर रहे, हम लड़ाई झगड़ा करके नहीं कर रहे। लेकिन आप कोई क्वेश्चन करें कि आपने सर किसी ज़माने में 35,000 कैमराज लगाना था, सर कोई एक स्टेटमेंट तो दें कितना कैमरा लगा, उसके लिए आपने 10 अरब रुपए निकाला है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे प्रूफ कर दें कि जी आप गलत कह रहे हैं। हम मुझे ना करें, हम एक आम पब्लिक है, आम पब्लिक को करें। तो ये सिर्फ तरीका है। पाकिस्तान में द प्रॉब्लम इज़ के आपका जेब गर्म हो गया, बस ठीक। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे शायद करीम एडवोकेट साहब जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। रेंजर के हवाले से इनका सबसे जो मेन पॉइंट है, क्योंकि हमारे कराची में ख़ास तौर पे अमन रहेगा तो हम कोई भी काम कर सकेंगे, अदरवाइज़ कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा, सब घरों में ऑफिसों में बंद होकर रह जाएंगे। कि रेंजर को यहाँ पे रहना चाहिए, रेंजर को मूव नहीं करना चाहिए अनकंडीशनल, ठीक है, जैसे भी हालात हो रेंजर को यहाँ पे रहना चाहिए, रेंजर नहीं मूव होने चाहिए। दूसरा जो है कि आने वाली हुकूमत चाहे जिसकी बने, उसको ये चाहिए कि आवाम के लिए काम करे, आवाम की भलाई के लिए काम करे। नारे तो रोटी कपड़ा मकान के लग जाते हैं, लेकिन उसको पूरा कोई नहीं करता, सिर्फ नारे ही लगते हैं। नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, अमली काम करके दिखाया जाए, साफ पानी मुहैया किया जाए, उसके बाद जो है ना कम अज़ कम सड़कें, रोड, रोटी कपड़ा मकान, ये सबको मुहैया किया जाए, आवाम की भलाई के लिए काम किया जाए, एजुकेशन के लिए काम किया जाए, हेल्थ पे काम किया जाए। आवाम खुश होंगे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। कैमरामैन अली हशमी के साथ डॉक्टर नवीद बलोची, BBC उर्दू TV।